My lovely students, welcome to Mathological. This is the 18th session of CAT DILR100 series. In this series, we are doing total 100 DILR sets for CAT 2026 examination. Start करते हैं session. And if you're not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon. You can also message me on Telegram at adityakt. So the set for today. This is the set for today, followed by 3 questions and then some additional information, followed by 3 more questions. So pause the video and try to solve the set first, then only watch the solution. So I hope that you must have tried to solve it. This was an easy set, understanding based set on cryptoarithmetic. Amay has a certain sum of money denoted by the 4-digit number BCFE in Indian National Rupees, INR. Okay? INR. He divides his amount equally between his 2 sons, Bismoy and Chinmoy, such that each son receives an amount denoted by the 4-digit number DFED. So each of the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 have been coded with one letter among A, B, C, D, E, F, G, H, J and K with distinct letter representing distinct digits. Basically क्या है, हमारे के पास में total amount कितना है, BCFE, and that has been divided equally among the 2 sons, Bismoy and Chinmoy, and each has received amount DFED. So we can write the equation that basically this is DFED plus DFED, which is equal to a total amount with MI, which is BCFE. And we have to find out values of all these digits B, C, F, E, D and so on. ओके, और जो रह जाएगा वो सारे के सारे बाकी जो डिजिट्स हमारे बचेंगे A, B, C, D, वो पॉसिबिलिटी होगा वहाँ पे. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू सॉल्व. ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व, हमेशा फोकस करना है सबसे पहले स्टार्ट और एंड में, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ हिंट मिल सकता है. तो एट द एंड वी हैव D प्लस डी विच इज गिविंग रिजल्ट इक्वल टू E. अब यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, इधर D प्लस डी इज इक्वल टू E या फिर एक कैरी हो गया होगा, ठीक है, या फिर +1 कैरी हो गया होगा. तो इन दैट केस D प्लस डी विल बी इक्वल टू 10 प्लस E. ठीक है, दो पॉसिबल केसेस होंगे. बट अब स्टार्ट में ऑब्जर्व करो, स्टार्ट में भी D प्लस डी आ रहा है और स्टार्ट का रिजल्ट क्या है, डिफरेंट है. दिस रिजल्ट इज डिफरेंट. तो यानी कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि D प्लस डी से 1 कैरी हो जा रहा हो, क्योंकि स्टार्ट में रिजल्ट B आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है. बट एक और बात सोचने वाली है, वो क्या है कि स्टार्ट में जब हम रिजल्ट देखते हैं तो क्या हमें D प्लस डी के बाद में 4 डिजिट नंबर्स को हमने ऐड किया है और रिजल्ट भी एक 4 डिजिट नंबर है. तो अगर D प्लस डी वॉज मोर देन 10, इन दैट केस 5 डिजिट नंबर रिजल्ट होना चाहिए था, बट दैट इज नॉट द केस. यानी कि D प्लस डी मिला के हमें 10 से बड़ा नंबर तो नहीं दे रहा है, दैट इज फॉर श्योर. D प्लस डी इज लेस देन 10. पॉज द वीडियो and try to think about it. D plus D should be less than 10, क्योंकि अगर D plus D greater than equal to 10 होता तो इन दैट केस हमारा 5 डिजिट नंबर हमें रिजल्ट में मिलता, 4 डिजिट नहीं मिलता. बट क्योंकि 4 डिजिट नंबर मिल रहा है कि D plus D is for sure less than 10 and that implies that D is less than 5. तो either D is equal to 1 or 2 or 3 or 4. यानी कि D plus D is equal to, अगर 1 2 3 4 है तब तो कैरी नहीं हो रहा है यहाँ पे, और फिर भी दो रिजल्ट डिफरेंट कैसे मिल रहे हैं कि यहाँ पे D plus D आ रहा है इक्वल टू E and here D plus D is equal to B. There is only one explanation, that we must be getting a carry from द लेफ्ट मोस्ट सेकंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट. तो यहां से कैरी मिल रहा होगा, यानी कि +1 हो रहा होगा. तो बेसिकली D प्लस डी दिस इज इक्वल टू E एंड देयर आर टू कितने पॉसिबल केसेस होंगे, D लेस देन 5 है, सो D कैन बी इधर 1 और 2 और 3 और 4 एंड अकॉर्डिंगली E कैन बी 2 और 4 और 6 और 8 एंड D प्लस डी +1 विल बी इक्वल टू B, बिकॉज E और B इक्वल तो नहीं हो सकते ना, लिखा है डिस्टिंक्ट लेटर्स रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट डिजिट्स, तो इक्वल तो नहीं हो सकते. So B can be, in that case, B can be, अगर if D is 1, तो B will be equal to 3. If D is 2, B will be equal to 5 and 7 and 9. So these are the possible cases for D, E and B. अब बाकी की बात करते हैं. So E plus E is equal to F. ठीक है, सबको साथ में लिख लेते हैं. क्या क्या हमारे पास लेटर्स हैं, D, E, B, F and C. So either D can be 1 or 2 or 3 or 4. E can be 2, 4, 6 or 8. And if E is equal to 2, so E plus E, 2 plus 2 will be equal to F, which is equal to 4. If E is equal to 4, ठीक है, अगर F equal to 4 आ गया तो C क्या होगा, 4 plus 4, C will be equal to 8. But the problem here is कि if C is equal to 8 तो कैरी तो हमें मिल ही नहीं रहा, यानी कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे B भी क्या हो जाएगा, B will also be equal to 2 only. So this is not the possible case, because B should be 1 more than E. D and E cannot be equal. Second case लिया, D is equal to 2, E is equal to 4, and if E is equal to 4, E plus E, 2E is equal to F, F will be equal to 8, and if F is equal to 8, तो 2F is equal to 10 plus C, यानी कि 2F क्या आ जाएगा, 16.
16 is equal to 10 plus 3, तो C will be equal to 6, और when carry आ जाएगा तो B will be equal to in that case 5. So yes, this is a possible case. थर्ड सिनेरियो लेते हैं. If D is equal to 3, तो E is equal to 6, और E plus E, 6 plus 6 is equal to 12. F आ गया हमारा equal to 2, और अगर F2 आ गया तो 1 कैरी हो गया हमारा. ठीक है, 1 कैरी हो गया, यहाँ पे +1 कैरी हो गया इन दैट केस. ठीक है, और +1 कैरी हो गया, 2 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 5. तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5. ओके, C इज इक्वल टू 5 आ गया. बट अगेन यहाँ पे हमारा जो हमें एंड में कैरी चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो दिस विल नॉट बी द पॉसिबल केस, क्योंकि यहाँ तो कैरी हो गया बट एंड में 1 चाहिए, वो नहीं मिलेगा, और एंड में रिजल्ट हमारा क्या आएगा, B विल अगेन बी इक्वल टू 6. So this is not a possible case. Last case, D is equal to 4, E is equal to 8, तो E plus E is equal to F, यानी कि 8 plus 8 से आ गया 16. 16 का यूनिट क्या है, 6 है, तो यानी कि F is equal to 6 आ गया. F is equal to 6 आ गया. ठीक है, और अगर F is equal to 6 आ गया और फिर यहाँ पे +1 कैरी हो जाएगा. ठीक है, सो 6 + 6 12 + 1 13, C will be equal to 3, और 1 कैरी आ गया, तो वहां से मेरे एंड में रिजल्ट क्या आ गया, B is equal to 9. तो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल केस. तो दो केसेस मिले हमें, इधर D is equal to 2, E is equal to 4, B is equal to 5, F is equal to 8, C is equal to 6. अब नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पे. BCFE का रिजल्ट क्या आ जाएगा, इन दैट केस BCFE and DFED. So in first case, BCFE will be equal to 5, 6, 8, 4. So total amount with Amay will be 5, 6, 8, 4, and amount given to the sons will be half of that, which is 2, 8, 4, 2. In the second scenario, amount with Amay will be equal to BCFE, which is 9, 3, 6, 8. So amount distributed to sons will be half of that, which is 4, 6, 8, 4. ठीक है, 4, 6, 8, 4. Here are questions देखते हैं. So first question, what is the maximum possible value of money with Amay which he divided among his two sons? Maximum possible value, so that will be equal to 9368, because there are two values possible, but maximum possible will be 9368 rupees. Second question, what is the minimum possible value of amount received by Bismoy? So minimum possible value will be for Bismoy 2842. And third question, what is the maximum possible sum of the digits represented by AGHGK? AGHJK. तो हमें ऑलरेडी DEBFC पता है, सो AGHJ के लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है फॉर AGHJK. ओके, सो DEBFC के लिए वैल्यूज तो हमें पता है. देयर आर टू केसेस पॉसिबल. फर्स्ट इज 2, 4, 5, 8, 6. तो यहाँ पे AGFJ के लिए, AGHJK के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, तो बच गए 0, देन 1, 3, 7 and 9. These are the possible digits for AGHJK. रिस्पेक्टिवली नहीं होगा, बट डेफिनेटली एक डिजिट्स होगा. ठीक है, तो इन 5 के लिए डिजिट्स क्या होंगे, 0, 1, 3, 7, 9. तो सम विल बी इक्वल टू 0 + 1 + 3 + 7 + 9, which is equal to 20. और सेकंड सिनेरियो, तो इन सेकंड सिनेरियो DEBFC आर 4, 8, 9, 6, 3. तो रिमेनिंग डिजिट्स आर 0, 1, 2 एंड 3 तो हो गया, 4, 5, 5 एंड 7. So 7 + 5, 12 + 3, 15. तो सम इज इधर 12 और 20 और 50 फॉर AGHJK. क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम, तो दैट विल बी इक्वल टू 20. आंसर विल बी 20 इन दिस केस. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो सेकंड पार्ट इज सेइंग इफ Amma had rupees EAGC more, then each of his sons would have received rupees BKKK each. In that case, the amount received by his sons would have been BKKK each if Amma had rupees EAGC more. ओके, सो ऑलरेडी अमाउंट कितना है, BCFE. दो पॉसिबल केस मिले हैं BCFE के. सो फर्स्ट केस वाज 9368 और सेकंड केस क्या था हमारा 5684. तो 9368 और 5684. ओके, एंड इन बोथ केसेस फिर से एक बार लिख लेते हैं फ्रेश पेज पे DEBFC.
So for DEBFC values क्या थी हमारी 24586 and 48963. Okay, so 24586 is corresponding to this value and 48963 is corresponding to 9368. Now question is saying if Amay had rupees EAGC more, in that case total amount received by his sons is BKKK each. तो EAGC will be equal to E और C की वैल्यूज हमें पता है, तो फर्स्ट सिनेरियो में E और C की वैल्यूज क्या है? E is equal to 4, C is equal to 6. तो E is equal to 4, C is equal to 6 and AG. So 4AG6, if we add 4AGC with 5684, तो total amount should be 2 times of BKKK. टोटल जो सम आएगा, this sum will be equal to 2 times of BKKK. Isn't it so? So if this is 2 times of BKKK, 4 plus 6 रिजल्ट में क्या देगा? 10 देगा, 0 देगा एंड में. तो एंड में 0 दे रहा है, तो 2 into BKKK में एंड में K कैन बी 0 और 5, बिकॉज जब हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, एंड में 0 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो या तो एंड में 0 ही आएगा अगर हमारा 0 से पहले वाला नंबर इवन होगा, ठीक है, तब तो 0 ही आएगा एंड में. अदरवाइज अगर पहले 0 से पहले वाला नंबर ऑड होगा तो फिर रिजल्ट में हमें 5 आएगा. तो K कैन बी इधर 0 और 5. These two are possible cases. Isn't it so? But can K be equal to 5? K cannot be equal to 5 because 5 तो ऑलरेडी हमने डेजिग्नेट किया होगा किसको? B को. तो K must be equal to 0. यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा, सम आएगा, दैट मस्ट बी इन थाउजेंड्स, है कि नहीं? K इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें K का रिजल्ट मिल गया, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 2B और B की वैल्यू हमें यहाँ पे पता ही थी 5, तो यानी कि 10,000. हाँ, 10,000 रिजल्ट आ गया, सम क्लियर हो गया, 10,000. तो दिस सम इज 10,000. तो यहाँ से 4AGC की वैल्यू मिल जाएगी हमें. 4AG6 क्या वैल्यू आ जाएगा? बिकॉज 5684 में हम 4AGC ऐड कर रहे हैं और आ रहा है रिजल्ट 10,000, तो 4AG6 विल बी इक्वल टू 4316. तो यहाँ से A इज इक्वल टू, फिर हमें A इज इक्वल टू मिल गया 3 एंड G इज इक्वल टू 1. इन दिस सिनेरियो A इज इक्वल टू 3 एंड G इज इक्वल टू 1. तो ये पहला केस हो गया, ठीक है. और K की वैल्यू साथ में वो भी मिल गई कि K इज इक्वल टू 0. अब सेकंड केस की बात करते हैं. तो इन सेकंड केस 9368 एंड वी आर एडिंग EAGC and E is equal to 8 and C is equal to 3. So 8AG3. We are adding this and the result is 2 times of BKKK. तो यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इफ यू ऑब्जर्व द यूनिट डिजिट, तो 8 + 3 रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है एंड में 11, एंड में 1 आ रहा है. 1 यानी कि ऑड डिजिट आ रहा है, और अगर ऑड डिजिट एंड में आ रहा है तो जैसे ही डिवाइड बाई 2 करोगे तो हमें इंटीजर ही नहीं मिलेगा. तो इन दिस केस जो सम आएगा हमारा, द सम डिवाइडेड बाई 2, दिस विल नॉट बी इवन इंटीजर. इंटीजर ही नहीं होगा, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है. दिस केस इज नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल बिकॉज द सम इज नॉट इवन. सम इवन होता तभी तो दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर पाते. तो यहाँ पे केस ही पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि दिस इज द ओनली केस पॉसिबल विद दिस कंडीशन. 5684 must be the amount initially with Amay with 4316 more rupees. He has total 10,000 rupees और फिर 5,000 5,000 और डिवाइड कर रहा है अपने सन्स के बीच में. क्लियर है बात? ठीक है. सो क्वेश्चंस देखते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 4 डिजिट नंबर EAGC. तो EAGC was equal to 4316. Next question, find the maximum possible value of 4 digit number formed by digits represented by letters H, A, G and K such that each is used exactly once. तो हमें क्या क्या पता है? हमें ये पता है K, A, G, D, E, B, F, C. These digits we have known. ठीक है, K, A, G, D, E, B, F, C. तो ये तो पता है हमको कि K is equal to 0, A, G, 3, 1 and then D, E, B, F, C is 2, 4, 5, 8, 6. बच क्या गया हमारे पास? अब बच गया है A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G. एक सेकेंड, A, B, C, D, E, F, G, H and K is remaining. तो H और K बचा है और डिजिट्स हमारे पास बची हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9 बचा है. So either H is 7, K is 9 और vice versa, H is 9, K is 7. So we are not sure. Apart from A digits, for remaining 2 digits we are not sure कि H 7 होगा या फिर 9 होगा. दोनों केसेस पॉसिबल है. क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 4 डिजिट नंबर फाउंड बाय डिजिट्स H, A, G and K. ओके, सो A, G and K तो श्योर है हमें कि A, G, K क्या है?
A इज इक्वल टू 3, G इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 0। बट क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है अपने 4 डिजिट नंबर को, सो H की वैल्यू क्या लेंगे? 9 लेंगे। टू मेक इट मैक्सिमम, H शुड बी इक्वल टू 9 एंड मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर सच दैट वी आर यूजिंग ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस, और 4 डिजिट नंबर ही बनाना है, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा? 9310। digits should be in descending order. So 9310 will be the answer. Largest possible 4-digit number will be 9310. Last question. Which of the following amount in rupees can be distributed to two persons such that each receives an integral number of rupees? Distributed to two persons such that each receives an integral number of rupees. तो DA, अब यहाँ पे क्या होगा? कैसे इंटीजर नंबर रुपीज दे पाओगे? जबकि हमारा जो इनिशियल सम होगा वो इवन हो। सम इवन कब होगा? जबकि यूनिट हमारा जो है दैट शुड बी इवन। तो A इज इक्वल टू 3। तो DA के केस में तो डिवाइड करोगे तो फिर इंटीग्रल नंबर ऑफ रुपीज नहीं दे पाओगे बिकॉज ए इज ऑड। G is also odd, not possible. H J, so J is equal to, J कहाँ गया? ओह, लास्ट में K क्यों लिख दिया था? लास्ट में J था, ये तो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, सो H J। अब H J, बोथ H and J आर ऑड डिजिट्स, तो फर्क नहीं पड़ता है कि H7 हो, J9 हो या फिर H9 हो, J7 हो। इन बोथ केसेस वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन सच ए मैनर दैट बोथ आर रिसीविंग इंटीग्रल नंबर ऑफ रुपीज इक्वली। ठीक है, और लास्ट केस FC, C is 6, so yes, यहाँ पे both will be receiving integral number of rupees. Option D will be the answer. ठीक है, दोनों को इक्वल अमाउंट मिले ऐसा नहीं क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों को इंटीग्रल नंबर ऑफ रुपीज हम डिवाइड कर पाए, बट ये पंगा है, दोनों को इक्वल ही मिलना चाहिए ना, इक्वल ही होना चाहिए यहाँ पर। तो ये इक्वल ही नहीं होगा तो फिर ऑड में भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लिखना रह गया। क्वेश्चन तो मैंने ही प्रिपेयर किया। ठीक है, कैन बी टू पर्सन्स इक्वली होना चाहिए था यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अदरवाइज फिर बाकी अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, इक्वली नहीं होगा तो फिर क्या है, फिर तो ऑड में ही पॉसिबल है ना। ठीक है, 73 में होगा तो क्या है, एक को 36 दे दिया, एक को 37 दे दिया। इक्वली इज इंपॉर्टेंट, वो मेंशन होना चाहिए था। सो ये करेक्शन था इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान देना चाहिए था प्रिपेयर करते समय। एनीवे, सो दिस इज द सेट फॉर टुडे। आई बिलीव कि जो भी चीज़ हमने डिस्कस की सारी चीज़ें समझ में आएंगी और उस सेट में मजा आएगा करने में। अगर कहीं पे अटके थे, फंसे थे, तो आप समझ में आएगा कैसे ऐसे किसी सेट को हैंडल करना है। फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। सेशन कैसा लगा फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में देना, और साथ में सेशन को लाइक नहीं किया है तो अब तक जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।